Hello, good evening class. Am I visible? Am I audible to you? If yes, please say yes. चालू है. Okay, so I'm audible, right? Uh, this is a very first class of logical reasoning, and I hope you have gone through the sheet which I have been provided yesterday, though it had some errors and which I have messaged you, but I have cleared it. There is a minor mistake in some options, and I have rectified it and again mailed it to you. Now, before starting the class, let's discuss first what is this course about. We have logical reasoning and data interpretation, right? So we'll be studying both the subjects and alternate basis, like जैसे आज in this week we have a class on logical reasoning, next week we'll have a class on data interpretation, then logical reasoning, so we'll go it alternate wise. Secondly, we know that we have 5 to 8 months in which we'll be completing all our exams, starting with NMAT. We have NMAT registration opening from 2nd of July. We have CAT. Within a week, we'll be having IFT. We'll be having SNAP, and we'll be having ZAT. So we'll have to study both the part of reasoning, that is the verbal reasoning as well as the logical reasoning part. So we'll be today, this is the first class, that's why I'm coming with the sets which are very basic. I have basic sets of puzzles, and I have taken sets from each and every topic, right from binary logic to cubes, puzzles, we have Venn diagram, we have selections, and last set I have put of CAT 2019, that is the 2019 first slot set. So this 6 sets we have been discussing today, we'll be discussing, but from next class onwards we'll be going topic wise and not in the depth, but we'll be studying the basic topic first. Like the first class from next week onwards we'll be having on setting arrangement, we'll be going with linear arrangement, then we'll be going with circular, we'll be going binary, then it will be games and tournament, we'll be having selections, and then puzzles. So from next classes onwards, right from DI, we'll be dealing topic wise. We'll be first 15 minutes, 20 minutes, we'll be discussing each and every topic in some depth. We'll be studying some fundas, some tricks, and then we'll go for the sheet. Okay, now let's come to the sheet first. We have the very first set. How many of you have gone through the sheet, and how many of you have the doubt on the very first set? Like we have the very first set, and anyone who had faced the doubt in first 4 questions can please any query or any problem with this first 4 questions. अगर कोई डाउट है किसी सेट में या पहले सेट में कोई डाउट है, प्लीज फर्स्ट. Yes, Radhika's in first set you have a doubt, right? What is the doubt? The set is on अच्छा पहले आंसर, पहले फर्स्ट सेट के आंसर्स दे दूं फिर अपन सॉल्व करें या फिर डाउट देखें? What will be the like should be it fine? So the answer, let's first, I will give the answers of the 4 questions of the first set, then we will be solving that set and then doubt dekhte apan, hai na? So the first question, the answer for the first question should be D Delhi. The second question is, the answer is again D Delhi, that is Wednesday. For third, the answer is C Calcutta, and fourth the answer is D Delhi, Thursday. Now we'll solve the set first. We'll read the set. The set says that Umesh Pandey, a cricketer who is very superstitious about his cricketing gear and accessories, the things he has for his cricket is very superstitious about him. He is having 7 gears and accessories. That is a Kookaburra Beast. We have Reebok black gloves. So the first is Kookaburra Beast. Then we have Reebok black gloves. The third item he has is Nike spikes. We have Puma half spikes. Then he has Oakley sunshades and fitness compression, and the last is sports watch. So he has 7 products, and on the practice day, that is from Sunday to Saturday, every day he uses any 3 of the products,
and in total he uses all the products in equal number of times. So Radhika the set says that there is a cricketer, उस बहुत सुपरस्टिशन रहता है, बहुत सारे चीजें देखता है और अंधविश्वासी रहता है, तो वो सुपरस्टिशियस रहता है, तो उसका क्या, उसके पास क्रिकेटिंग गियर्स होते हैं, कोई ग्लव है, शूज है, गॉगल्स है, स्पोर्ट्स वॉच है, तो हर दिन प्रैक्टिस पे जब जाता है संडे टू सैटरडे, हर दिन वो तीन इसमें से कोई भी चीजें यूज करता है, बट इन टोटल वो सारे सेम नंबर ऑफ सेट्स यूज करेगा. सो अगर पर डे वो 3 यूज करता है, सो दैट विल बी टोटल 21 टाइम्स ही विल बी यूजिंग ऑल द 7 प्रोडक्ट्स, और सारे प्रोडक्ट्स वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करता है. सो each product will be coming 3 times. So every day he will be using 3 of the products. Now if we have to crack this set, let's start with the fourth point. Fourth point says that Reebok gloves, he does not, when he uses a Reebok gloves, he does not use it for the next 2 following days. तो हमें जैसे पता है कि हर एक प्रोडक्ट वो 3 बार यूज करेगा, तो Reebok भी 3 बार यूज करेगा, और जब भी वो यूज करता है अगले 2 दिन वो यूज नहीं करेगा. सो Reebok के लिए एक ही केस बनता है, दैट इज RB 2 दिन यूज नहीं कर रहा है, RB फिर 2 दिन यूज नहीं कर रहा है, देन दैट इज RB. सो हमने 3 बार Reebok को यूज कर दिया. अब पहला पॉइंट क्या था कि Reebok के साथ वो कभी भी कोकाबुरा 20 दैट इज KB यूज नहीं करेगा, वो NS यूज नहीं करेगा, और वो FC यूज नहीं करेगा. तो Reebok के साथ ये 3 प्रोडक्ट कभी वो यूज नहीं करता. तो संडे हमें पता है कि RB यूज करता है, इसके साथ 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, दैट कैन बी ओनली PS और OS और SW. तो इन तीनों में से कोई 2 प्रोडक्ट यूज करेगा. बट 5th पॉइंट में उसने देखा है कि दो ही यूजेस Puma स्पाइक्स एंड Oakley शेड्स ऑन द सेम डेज, इट सेज डेज, तो Puma और Oakley शेड्स वो सेम डेज पे यूज करता है. सो PS और OS के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है RB के पास. सो हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन आ गया संडे, वेडनेसडे और सैटरडे का. सो RB कंप्लीट हो गया, PS कंप्लीट हो गया और OS कंप्लीट हो गया. अब बचा है NS, FC, SW और KB. अब इफ वी वांट टू सी द थर्ड पॉइंट, इट सेज दैट ही ऑलरेडी यूज्ड FC 3 टाइम्स बिफोर ही यूज्ड द थर्ड टाइम स्पोर्ट्स वॉच. तो FC उसने 3 बार ऑलरेडी यूज किया जब उसने SW स्पोर्ट्स वॉच तीसरी बार यूज किया है. तो FC जब वो तीनों ऑलरेडी यूज करता है, कब, जब वो तीसरी बार SW यूज करता है. तो वो केस एक ही बन सकता है जब मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे FC यूज करता है. तो तीनों बार यूज करने के बाद वो तीसरी बार SW यूज कर लेता है. तो हमारे पास एक रफली पूरा डेटा आ चुका है. FC को भी हमने पुट ऑन कर दिया. अब बचा है NS, SW और KB. सेकेंड पॉइंट सेज दैट ऑन 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज, 2 नॉन कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं आना चाहिए, गैप होना चाहिए, ही यूजेस स्पोर्ट्स वॉच एंड कोकाबुरा 20. तो SW और KB 2 बार यूज करता है, बट वो दोनों लगातार नहीं होना चाहिए. तो जाहिर सी बात है दैट ही विल बी यूजिंग वंस इन मंडे और ट्यूसडे and the other time he will be using on Thursday and Friday. अब यहाँ अगर मैं SW Thursday और Friday के इसमें अगर मैं SW यहाँ रखता हूँ, मान लो Thursday को रख देता हूँ, तो फिर NS को 3 बार यूज करना है, वो यहाँ यूज होगा, वो यहाँ यूज होगा और वो यहाँ यूज होगा. अगर NS 3 बार यूज होता है, let's take an example. ये केस मैं बनाता हूँ. If he uses SW and KB here, तो NS 3 बार यूज करेगा, तो ये ऐसा कुछ केस बनेगा. बट SW और KB एक बार और यूज करना है, दैट इज इधर मंडे और ट्यूसडे उसके पास स्लॉट नहीं है. दैट मीन्स द सेकेंड टाइम व्हेन ही यूजेस SW एंड KB, दैट विल बी डेफिनेटली ऑन फ्राइडे. अब इन दोनों में से एक बार यूज करना है, तो अगर इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, या तो SW जो एक साथ यूज होना है वो या तो मंडे हो सकता है या तो ट्यूसडे हो सकता है. अगर वो SW और KB मंडे होता है तो हमारे पास NS और NS का केस बनता है, और जो बचा हुआ एक KB और SW में ये ऑप्शनल हो जाएगा. एक केस ये हो सकता है, या दूसरा इनको मैं रिवर्स तरीके से लिख सकता हूँ. जब मैंने SW यहाँ और KB यहाँ यूज़ किया था, नेक्स्ट टाइम SW और KB यहाँ यूज़ कर लूँगा, NS और KB और SW में इंटरचेंज हो जाएगा. जस्ट
मंडे और ट्यूसडे का इंटरचेंज होगा, बाकी सब सेम होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 says which of the following gear he uses on Saturday, that is Reebok, Puma and Oakley. D option. Second, it says he does not use Nike spikes on. तो Nike spikes वो Tuesday यूज कर सकता है. He can use on Monday, तो C ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. Friday यूज कर रहा है तो B ऑप्शन भी चला जाएगा. Thursday यूज कर रहा है तो A ऑप्शन भी जाएगा. So it will be Wednesday. Coming to third, on Monday he uses all the following except. Monday वो FC यूज कर सकता है. A ऑप्शन इज रिजेक्टेड. Tuesday वो स्पोर्ट्स वॉच यूज कर सकता है. So B ऑप्शन कैन बी रिजेक्टेड. KB also uses, so D ऑप्शन ही रिजेक्ट होता है. But C option he does not use it on Monday, so that answer is C. Coming for fourth, on which of the possible days he cannot use sports watch and Kookaburra Beast. अब यहाँ and लिखा है. We have already studied in Venn diagram या cubes, जहाँ भी हमने स्टडी किया है, and का मतलब स्पोर्ट्स वॉच एंड कोकाबुरा बीस्ट दोनों साथ में होना चाहिए. सो ट्यूसडे दोनों साथ में हो सकते हैं इस केस में. मंडे वो दोनों साथ में हो सकते हैं. फ्राइडे वो दोनों साथ में है. थर्सडे वो साथ में नहीं है, इधर और में है, या तो कोकाबुरा होगा या तो स्पोर्ट्स वॉच होगा. तो इसीलिए फोर्थ का आंसर डी दिल्ली है. क्लियर? एनी डाउट मोर? राधिका, गॉट द आंसर? Any doubt regarding this set? No doubt. Coming to the second set will be, so I guess no one has a doubt in this set. थोड़ा सा जल्दी होगा. आज फर्स्ट क्लास है, मुझे भी थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली होना है इस सेट पे, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मैं, पहली बार यूज कर रहा हूँ. बाय द वे, मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग 2 चैट बॉक्स, है ना. तो लेफ्ट वाला सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो चैट बॉक्स है वो आपके काम का है. दूसरा वो मेरे लिए यूज हो रहा है क्योंकि मैं विंडो पूरा डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर साइड ऑल्सो. तो आज विल बी, आप हम दोनों एक साथ ट्यूनिंग होते इस सेट पे, इस सॉफ्टवेयर पे. कमिंग टू द सेकेंड सेट, ये बेसिकली सेटिंग अरेंजमेंट का सेट है. विल बी फर्स्ट गोइंग विद द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 5, or else you guys put your answers 5 to 8, then we'll be discussing. आप लोग अपने आंसर्स रखो 5 to 8, we'll be discussing then. अभिषेक, दीप, राधिका, you guys put your answers first 5 to 8, then I will be giving the answers and then we'll be discussing. DB, AB, okay. Chalo, let's discuss the set first. There are two products, that is Taj Mahal and Raj Mahal, and the packaging of Taj Mahal is done in a cubical form, while the packaging of Raj Mahal is done in a cylindrical form, or that is kept in a line, and all the 9 tea garden, the 9 states, the tea coming from the 9 states are kept in a row from left to right, and that is alternately starting with the cubicle. तो पहला cubicle रखा है, then cylindrical. So we'll having 9 possible combinations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alternate रखा है, starting with the cubicle one. Cubicle are for Taj Mahal and cylindrical are for Raj Mahal. Okay, Gangtok is placed 5 places before the Imphal tea. Coming to the second point, the tea in the 4th cylindrical contains is Kohima. So we have the 4th, right?
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. It says fourth cylindrical, not fourth position, fourth cylindrical, so that will be the eighth one. निशान संडे टू फ्राइडे दिया हुआ है, संडे टू सैटरडे. फर्स्ट सेट में इट इज गिवन फ्रॉम संडे टू सैटरडे, प्रैक्टिस फ्रॉम संडे टू सैटरडे. तो डे स्टार्ट्स, वीक स्टार्ट्स विद संडे. Now coming to the second set, 8th. Now it says fourth cylindrical will be the T from Kohima. So we have 8th, which is Kohima, and the next line says the third container, cubical container to the left of Kohima contains Itanagar. Now it says third cubicle, not third place. So 1, 2 and 3. Third cubicle, it contains Itanagar. Darjeeling is put in a cubical container. It can be on 1st, it can be on 5th, 7th or 9th. Then the Imphal T is placed between Agartala and Kohima. So Imphal T is somewhere between Agartala and Kohima. The fifth T in the row is Aizawl. 1 2 3 4 5. It is from Aizawl. And the last says that there is one container between Imphal and Guwahati. So we have 3 positions already filled. Now we need Imphal to place, and when we place Imphal, it will be easy for us to place Gangtok because it is 5 places before. So let's see if we place. We cannot place Imphal here because it is between Agartala and Kohima. So Imphal, if it is placed here, we have 5 places before, that is 1 2 3 4 and 5. We have Gangtok here. This can be one case, or we have other case also, that is Imphal on 6th position, and 1 2 3 4 and 5 we can have Gangtok here. So there are 2 cases for Imphal. There is one container between Imphal and Guwahati. If Imphal is in this place, that is the 7th place, 6 and 5, we cannot have Guwahati here, but we can have Guwahati in this case. Here if Imphal is on 6th position, 1 place gap, Kohima is already there, so we'll be having Guwahati on this position. Now in the upper case we have Darjeeling to be in a cubical container, so Darjeeling will be on this place, and we don't know about Shillong. And Agartala is between Imphal and Kohima. Sorry, Imphal is between Agartala and Kohima. Sorry, Imphal is between Agartala and Kohima. So we have Imphal, we have Kohima. It does not say exactly between. Exactly between का मतलब दोनों तरफ से वो equal distance होना चाहिए. यहाँ equal distance है नहीं है, ये नहीं दिया, सिर्फ बीच में बोला है. So Agartala और Shillong, anyone can be placed in any of the position. नीचे वाले केस में again Imphal should be between Kohima and Agartala, so Agartala will be on this position, and both the container are of cubicle, so Darjeeling and Shillong can be in any of this case. So both the case are eligible and both the case are possible. तो questions देखते हैं. Which of the following is not a possible sequence from left to right? Left to right से sequence नहीं होना चाहिए. A option says Darjeeling, Gangtok, Itanagar, Shillong. We have Darjeeling, Gangtok, Itanagar, Shillong. हो सकता है, possible combination है. C option says Gangtok, Agartala, Itanagar, Guwahati. Possible case है. D option says Aizawl, Shillong, Imphal, Kohima. Aizawl, Shillong, Imphal, Kohima. D option भी satisfy कर रहा है. So the answer for question number 5 is B. बहुत लोगों का गलत हुआ है. Question number 5 answer is B. Any doubt? Question number 6. Agartala T can ताजमहल T. अगरतला फर्स्ट केस में 4 और 6 में है, दोनों सिलेंड्रिकल है, तो ताजमहल नहीं हो सकता. सेकेंड इसमें अगरतला सेकेंड पे है, अगेन सिलेंड्रिकल है, तो ये ताजमहल नहीं हो सकता. तो ए ऑप्शन कैंसिल होता है. बी सेज 2 कंटेनर्स अवे फ्रॉम ईटानगर.
अगरतला अगर यहाँ होता है तो 1 place away, यहाँ होता है तो 3 places away. In this case अगरतला is 1 place away तो 2 containers away नहीं हो सकता. B option is also cancelled. D option says 6 places away from Darjeeling. तो दार्जिलिंग यहाँ है 6 places away. अगरतला let's check 1 2 3 3 है 4 and 5. It can be either 3 places or 5 places. 6 places नहीं हो रहा है. नीचे वाले केस में if Darjeeling is on 7th position, अगरतला 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे आ रहा है. और अगर दार्जिलिंग 9th पे है 1 2 3 4 5 6 and 7 7. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी कैलकाटा. ओके सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई बी. क्वेश्चन नंबर 5 says which of the following is not a possible sequence. पॉसिबल सीक्वेंस नहीं होना चाहिए राधिका. डी ऑप्शन कह रहा है एजवाल शिलोंग इम्फाल कोहिमा. ये देखो डी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो रहा है. अगर फर्स्ट केस देखते तो वी हैव एजवाल शिलोंग अगर यहां बैठता है तो पॉसिबल है इम्फाल एंड कोहिमा. डी ऑप्शन सीक्वेंस दे रहा है लेफ्ट टू राइट. क्वेश्चन सेज नॉट अ पॉसिबल सीक्वेंस. इट कैन बी ओनली बी. सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो सकता है, पॉसिबल है. अगर अगरतला कैन बी बिटवीन ईटानगर एंड शिलोंग. सो वी हैव अगरतला. अगर अगरतला यहां होता है तो इट कैन बी बिटवीन ईटानगर एंड शिलोंग. कैन बोला है. क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन में था नॉट अ पॉसिबल. पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कैन, कौन सा हो सकता है. तो अगर अगरतला यहां है और शिलोंग यहां है तो अगरतला कैन बी बिटवीन ईटानगर एंड शिलोंग. 6 का आंसर सी है. प्लीज गो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. कीवर्ड्स देखो. इट कैनॉट बी सेड अबाउट शिलोंग टी दैट. फर्स्ट ए सेड्स इट एग्जैक्टली एट द सेंटर. सेंटर मतलब फिफ्थ. दोनों केस में एजवाल है. दिस कैनॉट बी सेड बट बाकी इट शुड बी सेइंग. बी सेज इट इज नॉट अ राजमहल टी. शिलोंग अगर यहां आता है तो राजमहल है, बट शिलोंग अगर इस केस में आता है तो राजमहल नहीं है. तो दिस कैन बी सेड. क्वेश्चन है दिस कैन बी सेड. सी इट इज अ राजमहल टी. ऊपर वाले केस में जाओगे तो शिलोंग कैन बी ऑन 6th और 4th. बोथ सिलेंड्रिकल है, राजमहल हो सकते हैं. दिस कैन बी सेड. डी ऑप्शन सेज इट इज बिटवीन गैंगटॉक एंड इम्फाल. शिलोंग इन दोनों में अगर 4th और 6th में बैठता है तो गैंगटॉक और इम्फाल के बीच में है. दिस ऑल्सो कैन बी सेड. बट ए सेज इट इज एट द सेंटर. दिस कैनॉट बी सेड. सो आंसर इज ए आगरा. फॉर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ए आगरा. बहुत लोगों का टच गायब हो गया रीजनिंग से. एनीवेज विल कम बैक टू इट. क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द गिवन डेटा इट इज पॉसिबल टू फिक्स द पोजिशन ऑफ. ऊपर वाले केस में अगेन हमारे पास अगरतला शिलोंग नहीं है. नीचे वाले केस में दार्जिलिंग शिलोंग नहीं है. सो आंसर विल बी ओनली आउट ऑफ 9. 7 कैन बी एग्जैक्टली सेड. सो आंसर फॉर 8 इज बी बॉम्बे. एनी डाउट्स बिफोर गोइंग टू द थर्ड सेट? प्लीज चेक करो. तन्वी यू आर लेट टू क्लास. मेरी क्लास हमेशा टाइम पे अटेंड करना प्लीज. एनी डाउट्स? दीप, निशांत, जानवी, राधिका, श्रेष्ठा, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्लीज चेक. लैंग्वेज का खेल था. ओके मिड सेम था, नो इश्यूज. सेट के लैंग्वेज पे जाओ. आप लोगों ने लैंग्वेज पे नहीं दिया था. आई गेस यू माइट हैव रेड दैट इट इज अ पॉसिबल सीक्वेंस और मस्त ढूंढने में लगे थे. बट क्वेश्चन के लैंग्वेज में जाओ. कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में. छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. मे, कैन, मस्ट. ये पूरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर देता है. सो प्लीज गो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस. कीवर्ड्स देखो क्या पूछा है. डन. नेक्स्ट सेट. क्वेश्चन नंबर 9 to 13 बाइनरी लॉजिक. आई गेस अभी भी आपको थोड़ा सा बाइनरी लॉजिक के बारे में. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा राधिका, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि कितने बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन फिक्स हो सकता है. अश्विन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन डेटा इट इज पॉसिबल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ. कितने टी प्रोडक्ट के पोजीशन फिक्स कर सकते हो आप. तो ऊपर और नीचे वाले केसेस में देखो हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में फिक्स नहीं था.
ऊपर वाले केस में इन दोनों के बारे में फिक्स नहीं था, तो फिक्स नहीं होने के कारण क्या है, बाकी 7 को अपन बिठा पाए बट बाकी 2 को नहीं बिठा पा रहे दोनों केस में। हाँ, अगर आंसर 5 फॉर एग्जांपल एक सेट में आंसर 5 होता और दूसरे में 7 होता तो आंसर नहीं होता हमारे पास, बिकॉज दोनों में अलग अलग पोजीशन फिक्स हो रही है। बट यहां दोनों में 7 पोजीशन फिक्स हो रही है, तो हम एक कॉमन देख रहे हैं कि 7T दोनों केसेस में फिक्स हो रहा है। Yes, I am discussing about 8th one only. 8 says which of 8 क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा के थ्रू कितने पॉसिबल पोजीशंस हम फिक्स कर सकते हैं, हाउ मेनी टी कंटेनर्स कैन बी फिक्स्ड। दोनों इसमें कॉमन आंसर आ रहा है, ऊपर वाले में भी 7 टी बैग्स फिक्स हो रहे हैं, नीचे वाले में 7 टी कंटेनर्स फिक्स हो रहे हैं। ऊपर वाले केस में सिर्फ अगरतला और शिलोंग नहीं हो रहा है, नीचे वाले केस में सिर्फ दार्जिलिंग और शिलोंग नहीं हो रहा है। तो दोनों केसेस में 2 नहीं हो रहा है, बाकी 7 फिक्स हो रहे हैं, इसीलिए आंसर कॉमन 7 है। अगर आंसर 7 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल किसी एक में 5 आता दूसरे में 7 आता, तो आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड होता। बट दोनों में कॉमन है, हम दोनों में यूनिकली फिक्स कर रहे हैं 7 लोगों को, इसीलिए 7 आंसर है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 to 13। Okay, Abhishek, you have been practicing a lot. It seems you are in good touch of reasoning. Good to hear that. So we have 5 people, that is Jack Sparrow, Davy Jones, we have B, Will Turner and Elizabeth. Now if we talk, there is only one truth teller. एक आदमी है who will be always speaking the truth, but rest 4 will neither be a complete liar nor an alternator nor a truth teller. तो ये रैंडम होंगे और इनका पैटर्न भी अलग है। तो रैंडम के लिए पैटर्न ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये चारों का पैटर्न होगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई विल बी गिविंग द आंसर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर राइट, कंप्लीटली राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ए आगरा, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज डी दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी बॉम्बे। एनी डाउट्स? सॉल्व करना है इससे पहले? अगर इस सेट को डिकोड करना होता है, आई विल नॉट सॉल्व कंप्लीटली बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट क्लियर वेरी करेक्टली, बट इफ यू हैव टू डिकोड दिस सेट, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन होता है देयर इज अ स्टेटमेंट आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर। ये स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं होता, बिकॉज फॉल्स स्टेटमेंट नॉट होता है तो ये अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये ट्रुथ टेलर बन गया। बट ट्रुथ टेलर है तो फिर झूठ कैसे बोलता है, इसीलिए ये आंसर हमेशा ट्रू होगा। और 2 लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है, दैट इज डेवी जोन्स का थर्ड स्टेटमेंट और बारबोसा का फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, ये दोनों ट्रू होंगे। सेकेंड, अगर इसका थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है और ये ट्रुथ टेलर नहीं है तो ये इन्हीं दोनों में से कोई एक पैटर्न पे है। अगर इन दोनों पैटर्न में है तो फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों के गलत है, मतलब डेवी जोन्स का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होना ही है। अगर गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो डेवी जोन्स सेज एलिजाबेथ इज नॉट अ ट्रुथ टेलर, एलिजाबेथ इज नॉट अ ट्रुथ टेलर, एलिजाबेथ नॉट ट्रुथ टेलर और वो फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स होता है, नॉट करके कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है, वो अल्टीमेटली ट्रू हो जाता है। तो ये कह रहा है शी इज नॉट अ ट्रुथ टेलर और फॉल्स है, दैट मीन्स शी विल बी अ ट्रुथ टेलर। तो आपका एक ट्रुथ टेलर आपको मिल गया है, दैट इज एलिजाबेथ। शी सेज आई बॉट मीट एंड द पर्सन हु ओन्स ब्लैक पर्ल बॉट बेवरेज। तो ब्लैक पर्ल जो लेता है वो बेवरेज यूज करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट अगेन ट्रू है उसका, शी सेज बारबोसा ओन्स एम्प्रेस, सो बारबोसा ओन्स द एम्प्रेस। तो हमें एक व्हीकल ओनर भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया है। नाउ कमिंग टू Barbosa, he says I do not own the Empress. Second statement उसका है I do not own the Empress.
जो false है that means he will be owing the empress. तो ये statement false हो गया. अब बारबोसा ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका यही दो में से कोई पॉसिबल केसेस है, और फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स है तो उसका थर्ड भी फॉल्स होगा, मतलब वो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स हिज थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. दैट मीन्स ही सेड आई बॉट केन फूड, दैट इज फॉल्स. नाउ वी हैव completed this case and we have completed this case. Now coming to Jack Sparrow's second statement, it says Elizabeth didn't buy books. वो मीट खरीद रही है, she did not buy book, that is a true statement. So if it is a true statement, that means Jack Sparrow will either follow this case or he will either follow this case. विल टर्नर ऑन द अदर हैंड, उसका पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वन हु बॉट टबैको इज अ ट्रुथ टेलर. जो टबैको खरीदता है वो ट्रुथ टेलर है, बट ट्रुथ टेलर आपका एलिजाबेथ है हु बाइस मीट. सो ही स्टेटमेंट इज फॉल्स. दैट मीन्स ये दो केस जो होंगे वो डेवी जोन्स और विलियम टर्नर के लिए ही जाएंगे. दैट मीन्स जैक स्पैरो विल फॉलो दिस केस, दैट इज ट्रू ट्रू एंड फॉल्स. अगर ट्रू ट्रू फॉल्स है तो उसका पहला स्टेटमेंट है आई डू नॉट बाय टबैको, दैट इज ट्रू. Third statement says that Will Turner does not own Jolly Rogers. That is a false statement. Again, not करके statement और false होता है. That means Will Turner will definitely use Jolly Rogers. Coming to Davy Jones and Will Turner, दोनों false से start कर रहे हैं, but दोनों का end true में होगा, इसीलिए Will Turner भी true बोलेगा. तो उसका third statement true है. That means I bought books. तो वो books खरीदेगा. अब coming to Davy Jones, he says second statement says that Will Turner bought beverage. This is not true because he bought books. So ये false होगा. अगर false false true statement इसके पास है तो false true true statement Will Turner के पास जाएगा. So Will Turner's second statement says that Davy Jones own Royal Fortress. So Davy Jones own Royal Fortress. हमारे पास एक स्टेटमेंट पहले से था, ब्लैक पर्ल वाला बेवरेज खरीदता है तो वो एक ही ऑप्शन हो सकता है बिकॉज यहाँ रॉयल फोर्ट्रेस हो चुका है, एम्प्रेस हो चुका है, जॉली रॉजर्स बुक्स हो चुका है, तो ये मीट भी हो चुका है. सो ब्लैक पर्ल एंड बेवरेज वो जाएगा जैक स्पैरो के पास. ब्लैक पर्ल, रॉयल फोर्ट्रेस, एम्प्रेस, जॉली रॉजर्स, बचा है फ्लाइंग डचमैन. नाउ दो प्रोडक्ट बचे, दैट इज टबैको एंड केन फूड. बारबोसा का लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स था, दैट इज ही डिड नॉट, ही सेज आई बॉट कैन फूड, दैट इज फॉल्स. दैट मीन्स कैन फूड इसके पास जाएगा और टबैको विल गो टू एम्प्रेस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज ninth, the traveler who bought meat was, ninth traveler who bought meat was Elizabeth, क्योंकि she is the truth teller and she has brought the meat. Question number 10th, it says who is the truth teller. I have already told the logic for it, that is B Bombay. Question number 11 says it bought tobacco, Barbosa bought tobacco, so answer will be D Delhi. Question number 12 says how many travelers had their first statement false. ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले ही पता चला था कि पैटर्न ये है, तो सिर्फ दो ही लोग होंगे जिनका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा. सो आंसर फॉर 12 वाज बी. सो दिस वाज द सेट. एनी डाउट्स प्लीज? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? 11 का है सेट टबैको, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन बचे थे केन फूड और टबैको में, और बारबोसा का लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स था. कृष्णा प्लीज लिसन, बारबोसा का लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स था. वो बोल रहा था आई बॉट केन फूड, दैट मीन्स ही डज नॉट बाय केन फूड, तो वो डेविड जोन्स के पास चला जाता और जो बचा टबैको है वो बारबोसा के पास आता. सो आंसर इज ए बी डी बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 to 16 प्लीज आंसर्स. इसमें ऑप्शन नहीं थे एंड आई नो यू गाइज डू नॉट लाइक सिलेक्शंस. सिलेक्शन पार्ट आपको पसंद नहीं है बिकॉज बहुत नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ते हैं. सो प्लीज राइट योर आंसर्स फर्स्ट. Answers for question number 13 to 16.
Ragini, your doubt is if there was only 4 people, then can their pattern be identified? ये तभी पॉसिबल होता अगर इसमें ट्रुथ टेलर नहीं होता और बोला जाता चारों रैंडम है और चारों का अलग पैटर्न है, तभी हो सकता था. बट इफ अल्टरनेटर आता तो मुश्किल है, ट्रुथ टेलर आता तो मुश्किल है. अगर चारों अलग होने चाहिए तो वो तभी पॉसिबल है जब वो पैटर्न जो है बोला जाए कि ऑल द 4 आर पीपल हु स्पीक नीदर ट्रू नॉर अ लायर नॉर एन ऑल्टरनेटर. मतलब चारों अगर ऑल्टरनेटर होते तो फाइंड आउट करना इजी होता, बट चारों अल्टरनेटर नहीं है, 3 अल्टरनेटर और एक ट्रुथ टेलर रख दिया या 2 अल्टरनेटर एक ट्रुथ टेलर रख दिया तो मुश्किल हो जाता, बिकॉज रैंडम के 4 केसेस है. तो अगर 3 रैंडम और एक ट्रुथ टेलर दे दिया तो 4 में से 3 ढूंढने की पॉसिबिलिटीज 4 होती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना. सो अगर 4 होते और चारों रैंडम होते तो इजी होता, नहीं होते तो डिफिकल्ट होता. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 to 16. So we have 9 people, A, B, C, D, E, F, G, H and I. और इन 9 में से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं such that there are 2 cases condition. First says A, D और E में से exactly 1 सिलेक्ट होगा and that will be a captain. तो इन दोनों में से हमें से एक सिलेक्ट करना है, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास. सेकेंड सेज एटमोस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, मतलब या तो एक सिलेक्ट होगा या तो 0 सिलेक्ट होगा. बी, डी और ई तो हमने ले लिया. बी, एफ और आई में से या तो एक ही सिलेक्ट होगा या कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा. तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं. फर्स्ट, either I will be selecting only one among B, F and I, or else I won't be selecting any of them. So अगर मैं पहले केस में इनको नहीं लेता तो बचा कौन? A, C, G और H. कितने केस हो गए? इनको मैं 2 बार लिख सकता हूं, एक बार D के साथ, एक बार E के साथ. बट अगर मैं B, F और I में से किसी एक को लेता हूं तो A, C, G और H को लिखने के मेरे पास, इनमें से 3 को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कितने केस होंगे? दैट विल बी 4C3. 4 केसेस होंगे. इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं अगर 4C3 नहीं आता हो तो. A, C, G और H 4 में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है, तो केस होगा ACG या ACH या AGH या CG और H. मतलब 4 केसेस होंगे टोटल, और 4C3 भी 4 ही होता है. तो मैं D, B ये 4 केस हो सकते हैं, D, F ये 4 केस हो सकते हैं, D, I ये 4 केस हो सकते हैं, E, B ये 4 केस हो सकते हैं, E, F ये 4 केस हो सकते हैं, E, I ये 4 केस हो सकते हैं. सो द नंबर ऑफ केसेस विल बी 2 3s are 6 into 4. 2 3s are 6, 6 4s are 24. 24 प्लस ये 2 केस, टोटल 26 केसेस होंगे. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज 26. एनी डाउट्स? क्योंकि सिलेक्शन है, क्वेश्चन वाइज जाना पड़ेगा, पूरा सेट एक बार में सॉल्व नहीं होता. सिलेक्शन का गोल्डन रूल याद रखना, सेट एक बार में नहीं बनता, हर क्वेश्चन में अलग रेफरेंस है. सेकेंड थिंग, जो मस्ट में है उसको पहले लो. जैसे इस केस में डी और ई कंपलसरी था, हमने उस केस को पहले लिया था. सो हियर वी हैव 26 केसेस. दीप, एनी डाउट? ओके दीप, आपका आंसर सही है, दैट मीन्स नो डाउट, फाइन. सो कभी भी अब इसमें कैलकुलेट करना, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको. इसमें से 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, 3 में से एक को करना है और 4 में से एक को करना है. तो 2 3s are 6, 6 4s are 24. 24 केसेस और ऊपर के 2 केसेस, दैट विल बी 26 केसेस. क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 says if F is in the team then in how many ways can the team be selected? F यहाँ हो सकता है, ये केस हम नहीं लेंगे. तो D और F एक केस बन सकता है, E और F एक केस बन सकता है. बट इनके साथ मुझे ये 4 को बिठाना पड़ेगा, तो ये 4 बार लिख सकता हूँ मैं और ये 4 बार लिख सकता हूँ मैं. सो टोटल कितना हो गया? 8 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 8 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 15. If neither B nor F nor I is selected, then in how many ways can the team be selected? B, F और I select नहीं हुए, तो कितने तरीके से टीम बन सकती है? हमने वो पहले ही बना के रखा है, that is 2 different ways. D के साथ D, A, C, G, H,
और EACGH, ये केसेस बन सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 16 में आने से पहले? 13, 14, 15 प्लीज चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 13 एंड 14, कोई डाउट प्लीज? आई गेस नो डाउट, कोई रिप्लाई तो आया नहीं है अभी। दैट मीन्स सबका क्लियर है ये क्वेश्चंस। Next, with additional information in 16 it says if exactly one among J and K must be selected, कोई एक J और K में से सिलेक्ट होना, और मस्ट बोला है मतलब D और E में से तो एक होना ही है, J और K में से एक होना ही है। अब आगे हमारे पास B, F और I में से एक आना था, B, F और I, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना ही था मुझे, और बचे दो स्लॉट में A, C, G और I, ये केस हो सकता है। दूसरा केस D और E में से एक कंपलसरी है, J और K में से एक कंपलसरी है, B, F और I एटमोस्ट था तो मैं नहीं लेता इनको, तो A, C, G और I चार में से तीन को लेना है मुझे। सो चार में से तीन को लेने की पॉसिबिलिटी विल बी 4C3, दैट विल बी 4, या फिर ACG, ACI, AGI और CG और I। सो चार केसेस, सो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। नीचे वाले केस में 16 तरीके से लिख सकता हूं मैं, 2 2 जा 4 और चार केसेस है, सो 4 4 जा 16। ऊपर वाले केस में D और E में से एक लेना है, J और K में से एक लेना है, इस केस में B, F, I में से एक लेता हूं मैं। बाकी दो स्लॉट जो है A, C, G and I में से कोई दो होने चाहिए। सो चार में से दो को लेने की पॉसिबिलिटी विल बी 6, 4C2 विल बी 6, या फिर इसको अपन मैन्युअली करके देखते हैं, AC, AG, AI, CG, CI एंड GI। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। सो ऊपर वाले केस में 72, नीचे वाले केस में 16, दैट विल बी 88। सो द आंसर फॉर 16 इज 88। एनी डाउट प्लीज चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज 88। प्लीज गो थ्रू द सेट। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज 88। बहुत लोगों ने 150 लिखा है, प्लीज चेक करो एक बार। एनी डाउट विद दिस? अभिषेक 72 सही था, बट नीचे वाला केस आपने मिस कर दिया। निशांत गलत। कृष्णा 150 रॉन्ग, कैलकुलेशन गलत किया था, इसीलिए मैन्युअली मत करो। जब लंबा होता है तो कंडीशन ज़्यादा होती है तो इसको ऐसे मैन्युअली मत करना, सीधा सीधा पता है कि इसमें से एक लेना है, इसको दो बार लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं, दोनों को मिला के हम चार बार लिख सकते हैं। ये भी आ गया, फिर इसको भी मिला के हम 4 3 जा 12, 12 टाइम, और ये 6 बार लिख सकते हैं, तो 12 3 जा ओके 72। अगेन आई विल एक्सप्लेन अगेन। डी और ई में से एक तो जरूरी है, जे और के में से एक तो जरूरी है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डी जे, डी के, ई जे, ई के, कितना हो गया? 4, तो 2 2 जा 4। अब इसमें बी, एफ और आई, अब इसमें बी एक बार हो गया, एफ ये एक बार हो गया, आई ये एक बार हो गया, कितना हो गया? 1 2 3, फिर 3 6, फिर 3 12, सॉरी 3 9, सॉरी 3 12, तो इसको 12 बार लिख सकता हूँ। सेम 2 इंटू 2, और ये 3 है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 6 केसेस है, दो में से ए, सी, जी और आई, चार में से दो में लेना है मुझे। चार में से दो को लेने के लिए तरीका होगा 4C2, दैट विल बी 6, सो इंटू 6 किया 72, तो 72 ऊपर वाले केस में, 16 नीचे वाले केस में, आंसर विल बी 88। क्लियर? प्लीज चेक करो आरुषि। रादर देन मैन्युअली लिखना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है,
और उस प्रेशर में हम लोग रफ वर्क करते करते गड़बड़ हो गया, क्योंकि 72 केसेस आप लिखते थोड़ी ना बैठोगे, तो इससे बेस्ट ये है कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये 6 केसेस है, 12 6 ज़ा 72, 72 और नीचे 16 88। सो कभी भी सिलेक्शंस में अगर कैलकुलेशन करना है, ये सबसे इजी तरीका है। रफ वर्क ऐसा नहीं कि वहाँ शीट्स नहीं मिलेगी, रफ वर्क के लिए बहुत टाइम मिलेगा, बट अगर प्रेशर में अगर गलत रफ वर्क हुआ, गलत कैलकुलेशन हुआ, एरर और ओमिशन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? नाउ अभिषेक, आंसर्स बहुत जल्दी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 to 20, आंसर्स प्लीज। वेन डायग्राम का सेट है, सिंपल सा सेट है। आई नीड योर आंसर्स फर्स्ट। Abhishek have given D, C, C, C. More answers, please. Nishant, Krishna, Deep. Okay, answer for 17 is D. Answer for 18 is C. Answer for 19 is C. And answer for 20 is C. D triple C is the answer. एग्जाम्पल में दे देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। वी हैव 3 sets, 3 combinations of Venn diagram. One is the probationary officer, we have specialist officer, and we have clerical cadre. And the total is 350, जिसमें exactly 1 हम डिनोट करेंगे ABC से। We have exactly 2, that is XYZ, and we have all 3 that will be representing by R, and D as none. Now out of 350, we know that 310 were preparing for either probationary or specialist or clerical. मतलब 350 will be A plus B plus C plus X plus Y plus Z plus R. This is 310. और बोला है प्रोबेशनरी और स्पेशलिस्ट और क्लरिकल, दैट मीन्स या तो प्रोबेशनरी अलोन, या तो स्पेशलिस्ट अलोन, या तो क्लरिकल अलोन, और एल्स और में दोनों भी होता है। सो इट कैन बी एग्जैक्टली 2 का कॉम्बिनेशन और 3 का कॉम्बिनेशन, दैट इज ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड प्लस आर। सो 350 में से 310 अगर ये है, सो द वैल्यू ऑफ डी विल बी 40, and all 3 is 12.5% of more than those who are preparing for neither any of this 3 positions. That means जो R है that is 12.5 times more than of D. 12.5 is 1 by 8, so that means the value of R is 45. Next, now this XYZ को decode करना बहुत easy था। Those who were preparing for only probationary and specialist, मतलब X की वैल्यू only बोला है और and बोला है, so only मतलब इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, and मतलब दोनों साथ में होने चाहिए। So only probationary and specialist means the value of X, and those preparing for only clerical and probationary, that is the value of Y. So X or Y is 23 and 17 more than the specialist and clerical cadre. मतलब X is 23 and Y is 17 more than Z. So X Y Z total जो भी वैल्यू आती है X plus Y plus Z, इसमें X 23 more है Z से, Y is 17 more than Z. सबसे लास्ट में हमें पता है कि 190 वे प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब है X plus Y plus Z plus R is 190, जिसमें से R की वैल्यू 45 ऑलरेडी है। सो 45 है, सो वी हैव X plus Y plus Z दैट विल बी 145। क्लियर? अब ये 145 हमें इन तीनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि X एंड Y शुड बी 23 एंड 17 मोर देन Z रिस्पेक्टिवली। सो अगर ये 23 और 17 नहीं होता ज़्यादा, लेट्स अज्यूम कि X जो 23 ज़्यादा होना चाहिए था Y से, Z से, और Y जो 17 ज़्यादा होना चाहिए था Z से, अगर ये नहीं होता तो X प्लस Y प्लस Z तीनों बराबर होते, ये तीनों बराबर होते अगर 17 और 23 ज़्यादा नहीं होते। सो 17 और 23 कितना हो गया? 40।
हमने 145 में से 40 माइनस कर दिया। सो अब क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 105, और ये तीनों बराबर होते, सो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 35, 35 और 35, बट x इज 23 मोर, सो ये हो गया 58, y इज 17 मोर, सो ये हो गया 52, और z जो हो गया 35। हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आई है, और अगर इसको टोटल करेंगे तो 145 जरूर आएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 58, वैल्यू ऑफ y इज 52, वैल्यू ऑफ z इज 35। क्लियर? प्लीज चेक करो x y z को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। x was 23 more than z, y was 17 more than z। अगर ये 23 और 17 नहीं होता ज़्यादा तो ये तीनों बराबर होते। सो व्हाट वी डिड, वी ऐड 23 एंड 70 एंड वी सब्सट्रैक्टेड इट फ्रॉम 145, तो हुआ 105। हमें तीनों में इक्वल डिवाइड किया, इक्वल डिवाइड करने के बाद x को 23 वापस लौटाए और y को 17 वापस लौटा दिए। सो इससे हमारे तीनों की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट, the number of aspirants for only probationary officer is 80% of those who are recruited or who are preparing for all three recruitment। 45 का 80%, that is 36, value of A is 36 because it says only probationary officer। Next point, 166 were preparing for clerical cadre, so we have 166 who were preparing for clerical cadre, we have 52, 45 plus 35, that makes, अगर हम 132 and if we subtract it from 166 this will be 34, and last the value of B will be 50। so this is an glimpse of Venn diagram। थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा, ये थोड़ा इजी बेसिस पे था बिकॉज फर्स्ट क्लास थी, मैंने बेसिक शीट ली है, बहुत सिंपल, बट लेट्स आगे चल के हम लोग टॉपिक को और एनहांस पढ़ेंगे एंड विल बी डूइंग ऑन मोर कैट लेवल क्वेश्चंस एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस। Question number 17, how many are preparing for only probationary and specialist? Only probationary and specialist, that is the value of x is 58. How many are preparing for only specialist officer? That is the value of C, sorry, only specialist officer, that is the value of B. Answer is C, Calcutta 50. How many are neither preparing for probationary nor specialist? So C plus D हमें लेना है because probationary भी नहीं चाहिए और स्पेशलिस्ट भी नहीं चाहिए, सो इट विल बी C प्लस D, दैट विल बी 74। एंड द लास्ट, हाउ मेनी आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोबेशनरी और क्लरिकल बट नॉट स्पेशलिस्ट? सो प्रोबेशनरी और क्लरिकल बट नॉट स्पेशलिस्ट, सो इट विल बी A प्लस Y प्लस C, दैट इज 122। एनी डाउट्स बिफोर गोइंग टू द लास्ट सेट? लास्ट सेट में सिर्फ डिकोड करके दूंगा बिकॉज ये कैट का 2019 का फर्स्ट स्लॉट का सेट है, ग्वालियर में फर्स्ट स्लॉट नहीं था, आई गेस वी हैड सेकंड स्लॉट, एंड बहुत सिंपल सेट था। बट बिफोर दैट, एनी डाउट इन दिस सेट? क्वेश्चन नंबर 16 to 20, एनी डाउट्स? Please, any query, any doubt regarding this set? Okay, before going to the last set, because it is a CAT set, so we'll be doing it, I need some of your views or some of your points that how to go to our next classes with logical reasoning। कैसे हमें पढ़ना logical reasoning अगले classes में? It should be either topic wise, कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस में, जैसे पहले क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ले आओ, फिर बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस ले आओ, तो टॉपिक वाइज शीट्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिक्स शीट करना ज़्यादा सही रहेगा। और एल्स फर्स्ट क्लासेस हो जाए, जैसे अपन थ्योरेटिकल क्लासेस लेते हैं कि भाई गेम्स एंड टूर्नामेंट में ये पूरी क्लास होती है, वेन डायग्राम में ये पूरे क्लासेस होते हैं, तो ग्लिम्स पूरा थ्योरेटिकल पहले ज़रूरी है, बिकॉज मैंने बहुत सारे थ्योरेटिकल वीडियोस अपने आपके इसमें लॉजिकल रीजनिंग वर्कबुक में डाल रखे हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर उसमें 1 to 1 नहीं होता डिस्कशन, आप एक बार फिर 15-20 मिनट का एक ग्लिम्स दे के फिर टॉपिक वाइज शीट जाना है या फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज़ आई नीड योर व्यू पॉइंट्स कि शीट कैसे लेने जानी, बिकॉज
पहली क्लास थी तो थोड़ा सा वार्म अप भी किया, मेरे को भी थोड़ा टच में आना था बिकॉज ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए भी नया है, थोड़ा टाइम लग रहा है. बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी गोइंग विद द फ्लो. बट प्लीज़ कोई भी आपको यह पूछना है कि सर कैसे क्या, लास्ट सेट से पहले, बिकॉज लास्ट सेट दो इट विल बी सॉल्विंग इट, बट उससे पहले आई नीड योर इनपुट्स कि कैसे क्लासेस लेनी है हमें, क्योंकि हर वीक अल्टरनेट वीक विल बी हैविंग रीजनिंग. डीआई हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे बिकॉज मिक्स करने का कोई लॉजिक नहीं है. डीआई हमें चार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि मैथ्स लगाना है, इक्वेशन लगाना है. डीआई में चार्ट्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इन रीजनिंग आई हैव बोथ ऑप्शंस, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ. टॉपिक वाइज डिफिकल्ट तो कराऊंगा मैं, डोंट वरी, बट टॉपिक वाइज और random sheets. Okay, one suggestion here, Janvi says topic wise. Deep, I need your input also. Nishant, Krishna, topic wise or mixed sheets. Abhishek, topic wise. Okay, fine. Many of them are saying topic wise एंड विल गो विद टॉपिक वाइज शीट. हम लोग पहले 5-10 मिनट हम लोग जैसे बेसिक होता है ना, जैसे रीजनिंग में जो चीज़ें होती है वो जिससे बहुत जल्दी सेट क्रैक हो जाता है, विल गो विद दैट. और टॉपिक वाइज टफ कराऊंगा मैं, डोंट वरी. विल बी डीलिंग विद 2 or 3 सेट्स इन 1-1.5 आवर, तो टफ लेवल के कराऊंगा एंड विल गो विद टॉपिक वाइज. चलो, थैंक यू फॉर द इनपुट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज 1, then 9, 7 and 6. This is the answer for question number 21, 22, 23 and 24. We have B, H, double A, G, F, A, H, J, F, K, F, और इसको ऐड करने पे डबल A, F, G, C, A और F. नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. डिस्टिंक्ट नंबर्स है, नंबर्स रिपीट नहीं होंगे. एक अल्फ़ाबेट ने जो नंबर लिया कोई और अल्फ़ाबेट नहीं ले सकता. सो F और F ऐड करने पे वापस F चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब नंबर हम 0 रखेंगे. सो F कैन बी ओनली इन वन केस, दैट इज 0. अगर कोई भी नंबर उठाओगे तो ऐड करने पे तीसरा नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 और 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 और 3 करेंगे 6 आ जाएगा. The only possible case is when F will be 0. So 0 and 0 will be 0. So if F is 0, so ये भी 0 होना चाहिए. और ये 0 तब होगा जब यहाँ से इधर कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा. बट कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज दोनों अल्फ़ाबेट सेम है. सो ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको 5 और 5 रख के यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड करूँगा. नाउ कमिंग टू ए. अब यहाँ से ये और ये अल्फ़ाबेट सेम है. सो मान लीजिए ए को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड तो होना ही होना है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी. ए और ए तभी होगा जब यहाँ से लेटर कैरी फॉरवर्ड होके ये वैल्यू बन जाएगी. तो अगर मैं बी को 9 रखता हूँ और इसको 1 रखता हूँ, और मान लीजिए ए को 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू रख दिया, मैंने 2 रख दिया, सो ये हो गया 10 और 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये 1 हो जाएगा. बट ए और ए सेम नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू 1 होगी. सो 9 प्लस 1 10 कैरी फॉरवर्ड 11, तो ये भी 11 हो जाएगा. सो वी हैव वैल्यू ऑफ ए एज 1. ए 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा. ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा. जी और के अगर कैरी फॉरवर्ड करना है विथ 1 तो इट कैन बी 11. 11 के लिए केसेस 8 3 7 4 6 5 ये हो सकता है, बट 5 ऑलरेडी एच के पास है, सो इट विल बी ईदर 8 3 और 7 4. सो 8 और 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 जो बहुत लोगों का गलत हो रहा है, डी कैन नॉट रिप्रेजेंट. 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं जी के पास 8 या 7 आएगा तो डी रिप्रेजेंट नहीं करेगा. सो आंसर इज 1976. प्लीज चेक करो, बहुत इजी सेट था ये. कैट का 4 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पास 12 मार्क्स आते हैं, ऑलमोस्ट 70-75 परसेंटाइल. नाउ
as we have done with our sheet, थोड़ा सा बहुत जल्दी कंप्लीट किया. Anyways, next class we'll be having, we have come to a conclusion. कृष्णा मिक्स नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है. अगर मैं लेवल बढ़ा दूंगा, सेटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल कर दूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा. तो सबसे पहले अभी वी हैव 5 months फॉर कैट बेसिक. क्या करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज शीट करेंगे. हर टॉपिक लाइक फर्स्ट क्लास विल बी ऑन लीनियर अरेंजमेंट, और लीनियर अरेंजमेंट टफ लेवल पे करेंगे जहां मल्टीपल कंडीशंस ऐड ऑन होगी. मिक्स ही करेंगे बट लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग पजल डालने की कोशिश करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग बाकी टॉपिक डालने की कोशिश करेंगे, बट बेस अपना लीनियर पे करेंगे. फिर सेटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन सब कुछ डालेंगे, बेस अपना सेटिंग अरेंजमेंट का होगा. सो विल बी गोइंग टॉपिक वाइज, उसमें मैं एड ऑन बहुत करते जाऊंगा. देन विल गो विद गेम्स एंड टूर्नामेंट, विल बी हैविंग वेन डायग्राम, क्यूब्स, और इन्हीं बीच में विल बी स्टडिंग फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स एक एक क्लास हम लोग नॉन कैट रीजनिंग को भी देंगे, बिकॉज लास्ट ईयर एनमैट हैड almost 20 to 22 questions on critical reasoning, statement conclusion, statement assumption, we have cause and effect, strong weak argument. ये बहुत ज़रूरी था. so apart from मेन स्ट्रीम रीजनिंग जो कैट के लिए है फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, बिकॉज जुलाई आप लोग 2 जुलाई से आपके एनमैट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, तो पहला आपका एनमैट होगा ही होगा कैट से पहले. या फिर एक मेंटल क्या बोलते हैं उसको, कि कैट के लिए से पहले एक मेंटल होता है कि ऑनलाइन बैठ के पेपर देना. सो आप एनमैट ज़रूर दोगे, तो उसके लिए आपको अदर देन मैनेजमेंट एग्जाम के जो रीजनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. राइट, फ्रॉम क्रिटिकल हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, गेम अपना कैलेंडर्स हो गया, अपना डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जुलाई मिड से हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, बट दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, उसको बीच बीच में लाएंगे फिलर्स करके. नेक्स्ट टॉपिक श्रेष्ठा विल हैविंग ऑन लीनियर अरेंजमेंट. टफ होगा, इसमें लीनियर अरेंजमेंट में बहुत सारी चीजें मैं ऐड ऑन कर दूंगा. सो विल बी हैविंग लीनियर अरेंजमेंट, देन विल हम टॉपिक वाइज जाएंगे. आई विल डिनोट, विल राइट द टॉपिक. हम इसी टॉपिक को फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. लीनियर अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट. थर्ड विल बी गोइंग विद बाइनरी लॉजिक. देन विल गो विद सिलेक्शन. सिलेक्शन बहुत पहले ले आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. सिलेक्शंस के बाद विल हैव गेम्स एंड टूर्नामेंट, विल हैव वेन डायग्राम, क्यूब्स, एंड लास्ट में पजल्स. अब पजल्स इनमें सब में होगा, ऐसा कुछ नहीं, पजल्स इनमें सब में होगा. यहाँ से हम लोग मिक्स करना चालू करेंगे. जैसे आज की शीट थी, बस लेवल बढ़ा के उसमें मिक्स करना चालू करेंगे. डीआई में फर्स्ट विल हैव बार ग्राफ, देन विल हैव पाई चार्ट, विल हैव लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. विल हैव टेबल्स, दैट इज टेबुलर फॉर्म वाले जो आते. फिर विल हैव मिसलिनियस. अब जैसे लास्ट ईयर कैट में आप लोगों ने बोला रहे सर स्पाइडर चार्ट आ गया था, ये आ गया था, तो मिसलिनियस में हम उसको कवर कर देंगे. एंड लास्ट में विल हैव रूट्स एंड नेटवर्क. So this will be our chronology of studying DI and LR. So we'll be going with bar graph, linear arrangement. In DI will be having second pie chart, setting arrangement. So next week I will be coming. अब DI हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि मेजर चीज़ क्या होता है, कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन हमें नहीं देखना है, हमें DI को क्रैक करना सीखना है. सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग. नेक्स्ट वीक तो DI होगी फर्स्ट, तो बार ग्राफ हम करेंगे. उसके अगले वीक जब रीजनिंग करेंगे we'll start with linear arrangement. difficult होगा, we'll be putting multiple topics in this linear arrangement and we'll be solving it. ठीक है, कोई डाउट, एनी क्वेरी, कुछ पूछना है आप लोगों को? मैंने आपको क्रोनोलॉजी बता दी क्लासेस की कि अल्टरनेट वीक चलता रहेगा, एक रीजनिंग एक DI, एक रीजनिंग एक DI. कभी DI मैं भी लूँगा, कभी गिरीश सर भी लेंगे, बिकॉज हिज लॉजिक्स आर ऑल्सो वेरी, बिना पेन के सॉल्व कर लेते, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू गो थ्रू. नेक्स्ट वीक मैं DI ले आऊँगा, विल बी स्टडिंग बार ग्राफ, एंड उसके अगले वीक हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट का पहला चैप्टर. एनी डाउट, स्टडी प्लान कैसे, क्या किसी को कोई डाउट है? देखो रीजनिंग DI आई विल से बुकलेट कभी मत लगाना, बुक्स कभी मत लगाना. अपने आप को उल्टा और नेगेटिव तैयारी कर रहे हो कैट के लिए, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि रीजनिंग DI सेकेंड सेक्शन में आता है, मैथ्स भी सेकेंड सेक्शन में आता है. मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ. आप 3 घंटे कैट देते हो, जिसमें से पहला पूरा 1 घंटा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाता है. आप हैवी पैसेजेस, हैवी वर्बल एबिलिटी पढ़ते हो. जब सैचुरेशन होता है तब आप जाके सेकेंड सेट पे आते हो. तो आप जब सेकेंड सेट पे आते हो तो आपका माइंड पूरा रिकवर्ड नहीं होता, आप थके होते हो, आप बहुत कुछ रीडिंग में करके फिर आते हो.
तो आप फ्रेश माइंड से सेकंड सेट नहीं देते, और वही उल्टा आप तैयारी में कर रहे हो, आप बुकलेट यूज़ कर रहे हो। बुकलेट हम लोग स्टूडेंट फ्रेंडली चीज़ होती है पेपर पेंसिल पे सॉल्व करना, बिकॉज नर्सरी से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। रीजनिंग डीआई जब भी करोगे ऑनलाइन करना, भले ही एक सेट करना, चाहे पीडीएफ पे करो, चाहे प्लेटफॉर्म पे करो टेस्टिंग, चाहे जैसे भी करो, बट ऑनलाइन ज़रूर करना, क्योंकि पेपर पेंसिल पे जहाँ आपने किया आपको दिक्कत आएगी, स्पीड में दिक्कत आएगी। फ़र्क देखो, कैट के कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, 17, 18, 19, मैं गारंटी देता हूँ आप सॉल्व करना चालू कर दो, आपको बहुत ईजी लगेगा। बट वो कैट का माहौल होता है, वहाँ वो चीज़ें क्रैक नहीं करती, क्योंकि हमें ऑनलाइन की आदत नहीं है। हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफलाइन की है, पेपर पेंसिल पे करते हैं, और एकदम ऑनलाइन जाके देखते हैं तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी होता है, सेंटर का एक इफेक्ट भी पड़ता है, इसीलिए दिक्कत होती है। तो प्लीज़ एक बहुत सिंपल सा एडवाइस है, रीजनिंग टीआई सेक्शन 2 है, जहां आप रीजनिंग इंग्लिश ख़त्म करके फिर जाते हो रीजनिंग पे, तो आप फ्रेश माइंड से तैयारी नहीं करते। जितना ऑनलाइन तैयारी करोगे स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ऑफलाइन में 10 में से 10 पूरे करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर पेंसिल पेपर है ही नहीं अपना। आपको कैट क्रैक करना है या अभी ऑफलाइन 10 में से 10 करके खुश होना है, वो आपका डिसीजन है। बट प्लीज़ एक सिंपल सजेशन है, जब भी रीजनिंग डीआई करोगे, गो ऑनलाइन, पीडीएफ फॉर्म में दो, टेस्टिंग फॉर्म में दो, बट ऑनलाइन ही सॉल्व करो, बिकॉज आपको स्क्रीन फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन में एक बार में एक क्वेश्चन आता है, आपको पॉइंट्स दिखते नहीं बराबर, आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो वही आपकी एक्यूरेसी, वही आपकी स्पीड, वही आपकी रीडिंग स्किल सब एसेस होगा उसमें। सो प्लीज़ वेरेवर रीजनिंग करोगे, डीआई करोगे, याद रखना ऑनलाइन ही करना, और मोस्ट प्रॉब्ली टेस्टिंग फॉर्म में करना, क्योंकि रीजनिंग और ये मज़ा तो आता है करने में, बट टाइम नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो टेस्टिंग फॉर्म में करोगे, आपको ये पता चलेगा कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप 2 सेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी स्पीड कम है। वो 2 सेट ऐसे होने चाहिए कि आपके 2 सेट पूरे पढ़ के सॉल्व होने चाहिए। 24 मार्क्स डू मैटर। तो 24 मार्क्स में आप इस तरफ या उस तरफ हो जाते हो, तो 24 मार्क्स 8 क्वेश्चन पे हो जाते हैं, बट वो 8 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो सॉल्व होने के लिए 2 सेट बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ याद रखना। अभिषेक, आपके डाउट्स थे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप रीजनिंग में, आपने पूछा था मुझसे से रीजनिंग कैसे जाना है, याद रखना जब भी जाओगे ऑनलाइन टेस्टिंग ही जाना, या जो भी पढ़ोगे ऑनलाइन पढ़ना, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरीज, कुछ पूछना है? बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है अभी भी? एंड वीकली 2 मॉक बहुत ज़रूरी है, फुल लेंथ मॉक 2 बहुत ज़रूरी है। आप कैसे कहाँ देते हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपके हर टॉप, क्योंकि अब मेरे साइट पे हो, तो मैं आपके हर एक आईडी पे ध्यान से देखता रहूँगा, आपके हर एक मूवमेंट्स को, आपके हर एक परफॉर्मेंस को ज़रूर देखता रहूँगा। मुझे वीकली 2 मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स ज़रूर चाहिए, बिकॉज वो भी एक ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम हमें पता लगना चाहिए कि हमारा स्कोर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी नेगेटिव आता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका टाइम टू टाइम आप अगर फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो उससे ये भी पता चलता है आप कितना एग्ज़ाम फिट हो। तो वीकली याद रखना, अभी तो 1 से चालू करो, 5 ही महीने बचे आपके पास, 5th मंथ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इन 5 मंथ्स आप डेली हर वीक 1 मॉक ज़रूरी है। अभी जब 1 मॉक पे कंफर्टेबल हो जाओगे, धीरे धीरे करके उसको 2 कर देना। क्लियर? क्लियर? सो विल कॉल इट डे टू डे, बिकॉज हमने रीजनिंग के ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 बेसिक थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बहुत दिनों बाद रीजनिंग सॉल्व करने के बाद मेरे साथ, बट विल कम विद गुड सेट्स नेक्स्ट क्लास। आज सिर्फ बेसिक था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो कि नहीं हो। इट्स गुड टू हियर दैट सब लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, टच में है, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने मुझे टेलीफोनिक बात हुई है। सो आई नो देयर परफॉर्मेंस एंड देन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बट हाँ, नेक्स्ट वीक आई नीड कलेक्टिव एफर्ट। कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा डाइसी थे कि सेट सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीक से हम लोग फुल टू विल गो 100% टफ लेवल पे जाएंगे एंड विल सॉल्व इट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट ट्यूसडे, एंड इन नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी डूइंग डीआई, उसके अगले ट्यूसडे विल बी डूइंग सिटिंग अरेंजमेंट। थैंक यू सो मच।